everyone. It's a good old boy Faiz here. I hope you guys are doing absolutely fine. Well, today, in today's podcast, this podcast was very, very special for me. Why? Because I was doing this podcast with one of my biggest mentors in my life who played a very, very influential role when it comes to my upbringing, especially when I was in class 12, with no skills, with no talent, with nothing, any communication skills to present to the general audience. There was one point of time where I used to murmur a lot. I used to scared a lot when it comes to the interaction with other different people, because at that point of time I was not comfortable to talk apart from my parents and my little brother. So, but this guy came into the picture in my life and he changed my whole skill set that I used to have. I still remember him when I was in class 10th. He was giving one lecture in my school about career guidance as to what to pursue in class 11 and class 12. And the way he spoke was far different from other speakers that I have ever listened in my life. The way he presents, the way he speaks, the way he connects the real life scenario to his thoughts is somewhat mesmerizes me when it comes to his communication skills, his guidance skills. uh, when I was in Symbiosis Law School, Hyderabad, when I was about to give my pivot for this college, uh, I genuinely didn't know कि I would make this far. I would be able to crack my pivot. Is just because of this guy who helped me a lot when it comes to how to speak, how when to speak, and how to overcome your communication fear. This was the guy who helped a lot, and I still remember whenever I used to feel depressed, I used to feel very bad about my academic performances, because back in the day, and I still not academically sound, academically strong, because my interest is leaning towards somewhere else. So that is why I used to get depressed. I used to get sad a lot when I was giving CLAT and not getting good questions, not getting good solutions to the questions. छोटी छोटी बात पे I was used to get depressed. So but this guy came into the picture and he changed the entire thing. Without doing any further delay, let's bring back the podcast, and I hope you guys will learn something good out of it, because trust me guys, he's one of the best speakers out there who can literally give his thoughtful insights on mental health and positivism. So without doing any further ado, let's jump back to the podcast. Audio Jungle. तो वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है डॉक्टर संदीप बत्रे। ये बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड और बहुत ही अच्छे पर्सन है व्हेन इट कम्स टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और इनका नॉलेज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई वाज लिटरली सर्चिंग अराउंड माय करियर्स ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कैसे अपने अपने आप को स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हाउ शुड आई गिव माई वाइवा और ए पर्सनल इंटरव्यू व्हेन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई वॉज नॉट दैट गुड इन कम्युनिकेशन। बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ किस्म का इंसान था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। बट व्हेन आई सॉ संदीप सर टॉकिंग इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज, different seminars, I also remember one day when he was coming at my school and giving a conference on career guidance. I literally got really mesmerized by sir कि जिस तरीके से वो बोल रहे थे। From that point of time I was thinking कि नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना सीखना है। तो इनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ली थी व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट यू हैव कम to this podcast out of your busy schedule, sir. So thank you so much. Thank you so much, Paz. In fact, it's a wonderful initiative that you've got. And thank you for making me feel like a celebrity. It's a celebrity nahi, sir. You really have done wonders, especially in my life. So sir, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। You have mentored me and you have mentored a very huge population. बड़ा क्राउड को आपने मेंटर किया है when it comes to their career guidance, skills, personality. So मुझे ये जानना था, आपका डॉक्टर संदीप बत्रे कौन था? Who was your mentor, sir? As मेरी जिंदगी में वो रोल जो है वो मल्टीपल लोगों ने प्ले किया है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे मुझे पढ़ाने वाले लोग जो हैं उनमें जिन्हें मैं अपना एकेडमिक पेरेंट्स मानता हूँ, डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर रजनीश जैन, उसके पहले वेंकट रमन सर,
और अगर उसके पहले जाऊँ तो मोरेश्वर अभ्यंकर, हु वाज अ बिग नेम इन इंदौर एट दैट टाइम. ऑल दीज पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ. पर ये तो मेरी अपनी ज़िंदगी के लोग हैं, और ये मेरे ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स, मेरे ग्रैंडपा, मेरी फैमिली का हर मेंबर, उनके बियॉन्ड ये हैं. पर उनके अलावा मुझे लगता है ये रोल बहुत लोगों ने इनडायरेक्टली भी प्ले किया. क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर आप एकलव्य बनना चाहते हो ना, तो द्रोणाचार्य आपको मिल जाते हैं. मेरे केस में बहुत ये रहा. तो मेरे केस में ऐसे 3 अलग-अलग मुझे लगता है जिसको मैं कहूँगा ब्लॉक्स हैं, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे ब्लॉक्स हटे. पहला साहिर लुधियानवी और शैलेंद्र. तुम्हारे लिए, तुम्हारी जनरेशन के लिए शायद उतने परिचित नाम नहीं हो, बट आई मीन दे वर लिरिसिस्ट्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. लेकिन उनके उनके सॉन्ग्स जो हैं, अभी अगर आप मुझसे आज भी पूछोगे ना मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क किसका है, सबसे ज्यादा असर किसका है, तो वो उनके सॉन्ग्स का है. और उनसे आई हुई चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखा. चाहे वो साहिर लुधियानवी का पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पे मिलने वाले उस मंजिल पे खो जाने हैं, या मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी, ये जो है. या फिर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. ये इस तरह के न जाने कितनी सारी बातें हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. या शैलेंद्र की कही हुई बात कि जो कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं. आई मीन अमेजिंग अमाउंट ऑफ विजडम दीज वर्ड्स कैरीड. और मेरी जिंदगी में उनके उन लाइंस का बहुत फर्क पड़ा. उसके अलावा फिर जब मेरे काम की बारी आती है, तो 2 लोग जो कि स्टैंड आउट करते हैं मेरी जिंदगी में, वो है पहला डॉक्टर स्टीफन कोवे. शायद तुम जानते हो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जिन्होंने लिखी थी. आई थॉट ही वाज एन अमेजिंग राइटर. ही इज नो मोर ऑफ कोर्स. दूसरे डॉक्टर सलमान अख्तर, जो कि इस दुनिया के टॉप साइकोएनालिस्ट में से एक हैं, और जावेद अख्तर जो है उनके छोटे भाई हैं, सगे छोटे भाई. डॉक्टर सलमान अख्तर इज अमेजिंग. उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला. उसके अलावा यूल बी सरप्राइज्ड, मैंने जो है वो मूवीज से बहुत कुछ सीखा है. और 2 लोग जिनकी मूवीज से सबसे ज्यादा सीखा मैंने, वो थे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी. दीज 2 पीपल, चाहे वो बावर्ची हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो खट्टा मीठा हो, चाहे वो पिया का घर हो, इस तरह की न जाने कितनी मूवीज हैं जिन्होंने मुझे लगातार धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सिखाई. सो आई बिलीव दैट मेरे लिए मेंटर का वो रोल जो है वो बहुत सारे लोगों ने मिलकर प्ले किया. कहीं पर मैं अर्जुन था, जहाँ मैं डायरेक्टली उनसे सीख रहा था, और कहीं पर मैं एकलव्य था. काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल बात है. मैंने इनफैक्ट आई ऑल्सो अग्री कि काफ़ी मतलब मेंटर कहीं से भी होना चाहिए. मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लर्न फ्रॉम डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड डिफरेंट पीपल. सर यस, इन फैक्ट फैज, तुमने जो कि ये बोला इसलिए मैं उस पर कह दूं. मेंटर की डेफिनेशन क्या है? मेंटर इज समवन हु इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, तीनों. यस तो सर. मेरी जिंदगी में कुछ लोगों ने फ्रेंड बन के वो रोल प्ले किया, कुछ लोगों ने फिलोसोफर बन के, कुछ लोगों ने गाइड. और कई बार उनके सबके असर का इंटीग्रेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है. यस सर, दैट्स ट्रू. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका परसेप्शन एंड कंसेप्ट क्या है व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन रिगार्ड्स विद आर्ट? अगर मैं मेंटल हेल्थ और आर्ट को कंबाइन करता हूँ तो आपका परसेप्शन उस पर क्या है? फैज, कभी तुमने देखा ओनली गुड पीपल गेट डिप्रेस्ड, है ना? कभी तुमने ध्यान से देखा हो अंडरवर्ल्ड डॉन्स या गून्स जो हैं, या बहुत ही करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते. यस सर. I mean, always a good person gets into depression. Why? Have you ever thought about it? Let me explain. वो इसलिए क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं. तो हमारे अंदर बहुत सारे हमारी एनिमल रियलिटी के इमोशंस जो होते हैं वो लगातार ऊपर आ रहे होते हैं. पर हमारी जो सोशल प्रोग्रामिंग है, अगर वो सक्सेसफुल है और अगर हम अच्छे इंसान बन रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो एनिमल रियलिटी अंदर से आ रही होती है ऊपर की तरफ, उसको हमारा जो सोशल प्रोग्रामिंग है वो दबा के रखती है. और उस बहाने ही सही कई बहुत सारे इमोशंस दब जाते हैं अंदर. अब होता क्या है, वो इमोशंस अगर बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है. अब किसी भी हालांकि गुड और बैड पर्सन ऐसे होते नहीं है लोग, बिकॉज एवरीबडी इज गुड एंड बैड, देयर इज नो वन गुड और बैड पर्सन एज सच. पर जिनमें प्रपोर्शन शायद बैड का ज्यादा होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन इमोशंस को रोकते ही नहीं, वो तो बाहर निकल जाता है सब कुछ. इसलिए उनकी मेंटल हेल्थ नॉर्मली अच्छी रहती है. वो बाकी लोगों को जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दे देंगे, लेकिन खुद का नहीं होती. बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज फाइनली भले उनकी मेंटल हेल्थ ठीक ठाक रहती हो, लेकिन उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना, और वो जिंदगी लोगों की बर्बाद कर रहे हैं. पर दूसरी तरफ आप देखो, अच्छे लोग जो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे और उनकी अपनी जिंदगी भी अच्छी चल रही है, उनकी जो इमोशनल लाइफ है वो इसलिए मेजरअप रहती है क्योंकि अक्सर वो जो इमोशन अंदर, जिनको पेंटअप इमोशंस कहते हैं साइकोलॉजी में, वो पेंटअप इमोशंस बाहर ही नहीं निकलते. अब अगर आप आर्ट की बात करो तो आप पाओगे
मैं इनफैक्ट आपको जनरिक में बात कहूँ ना अगर वैसे, तो जिंदगी में अगर आप इन 4 चीजों का साथ नहीं छोड़ो ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मली अच्छी बनी रहती है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? स्पोर्ट्स, आर्ट, नेचर और रिलीजन। अगर आप स्पोर्ट्स, आर्ट, नेचर और रिलीजन, इन चारों में से किसी एक एक चीज को अपने साथ लगातार रख रहे हो ना, तो मेंटल हेल्थ क्यों अच्छी रहेगी? सिंपल सी बात। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो पेंटअप इमोशंस बाहर निकलते हैं, एग्रेशन बाहर निकलता है, चिल्लाना बाहर निकलता है, आप जो है वो अंदर जो भी कुछ छुपा के रखते हो वो बाहर निकलता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बाहर निकलती है, जेलसी बाहर निकलती है, एनवी बाहर निकलती है। उसी तरह से आप जब आर्ट के साथ होते हो तो भी सेम चीज होती है, बिकॉज आर्ट इज व्हाट, आर्ट इज अनबाउंडेड एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस। आप पेंट करो, आप फोटोग्राफी करो, आप राइटिंग करो, आप जो है वो गजलें सुनो, आप जो है वो म्यूजिक कंपोज करो, आप जो है वो गाओ, आप जो है वो स्कल्पचर बनाओ, आप जो है वो ड्राइंग बनाओ, आप जो भी कुछ करो, फाइनली ये सारी हॉबीज क्या करती हैं? ये हॉबीज आपके इमोशंस को बाहर निकालती हैं। दूसरा, एक बड़े इंपॉर्टेंट रिसर्चर रहे हैं, उनका नाम है मिहाई चिक्सनमिहाई। ये जो है इन्होंने बड़ी खूबसूरत बुक लिखी थी, फ्लो। और फ्लो जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान तब बहुत खुश रहता है तो उसकी लाइफ में फ्लो बना रहता है। तो जब भी कभी आप अपनी जिंदगी में आर्ट का हिस्सा होते हैं ना, तो वो फ्लो अपने आप ही बन जाता है। आपने देखा होगा, आप जब फोटो खींचने निकलते होगे तो पता नहीं चलता वो 3 घंटे कहाँ निकल गया। लोग जो हैं वो हारमोनियम बजा रहे होते हैं, 2-2 घंटे बजा लेते हैं, वो तो उनके पड़ोसी को बताना पड़ता है कि भाई तुम थोड़ा ज्यादा बजा गए आज, है ना। सो पॉइंट इज, ये क्या होता है, जैसे आपका स्पोर्ट्स जो है वो हेल्प करता है आपके इमोशनल इंपल्सेस को, पेंटअप इमोशंस को बाहर निकलने में, वैसा ही जो है वो आर्ट करता है। सिमिलरली वैसा ही नेचर का साथ करता है। आप जितना नेचर के साथ रहेंगे, हमारे अंदर की जो एनिमल रूट्स है ना, वो नेचर के साथ बहुत कंफर्ट महसूस करती हैं। एक खुले मैदान को देखना, खुला आसमान देखना, सामने समंदर देखना, इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्रेन जो है वो दरअसल हमारी एनिमल रियलिटी के नजदीक पाता है खुद को। एंड योर ब्रेन गेट्स रिलैक्स्ड व्हेनेवर इट लुक्स एट समथिंग व्हिच डजंट हैव लिमिट्स, व्हिच डजंट हैव बाउंड्रीज, क्योंकि उसके बाद फिर सोचने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए नेचर का आप साथ लीजिए। और चौथा, रिलीजन। वेल, आई मे नॉट बी अ ग्रेट बिलीवर इन रिलीजन, बट आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन द यूटिलिटी ऑफ रिलीजन। मेरा मानना है कि अगर आप रिलीजन का साथ बहुत अच्छे से रखें, तो रिलीजन, नेचर, स्पोर्ट्स और आर्ट, इन चारों का साथ हो तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और उसका रीजन एक ही है, ये जो है आपके अंदर के पेंटअप इमोशंस को बाहर निकलने के लेजिटिमेट तरीके देते हैं। Uh, really, Mera literally, when it comes to my perception towards mental health art, it was like it acts as an escape mechanism whenever you are suffering some kind of problem or any situation. According to me, ये जो भी depression है या फिर कुछ भी, it can happen with everyone. हमको भी नहीं पता है कि क्या है फॉर, लेकिन जो भी कोई चीज़ आर्ट से एसोसिएटेड करता है, आई गेस कि उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काइंड ऑफ ईज डाउन हो जाती, बिकॉज आर्ट कैन गिव द लाइक ऑप्शन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में स्पेशली यही होता है कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और आर्ट, रिलीजन और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने कही वो हैं कि आप उसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो ही मेरा परसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ एंड आर्ट। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड ऑफ human psychology and everything, I have heard this new word that was coined by you, which was known as emotional intelligence and social intelligence. So sir, ये आप काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में वोकल भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आप बात भी करते हैं, तो ये सर है क्या सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ नोन एज सोशल इंटेलिजेंस, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं? दरअसल फैज, सोशल इंटेलिजेंस जो है वो हम लोगों का एक वेंचर है जो कि सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करता है थ्रू इट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थ्रू इट्स ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन कोर्स विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। अब अगर आप सोशल इंटेलिजेंस को देखें, तो सोशल इंटेलिजेंस हमने टर्म कॉइन किया, लेकिन सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस जो है दरअसल वो हमने टर्म कॉइन नहीं किया, वो तो वर्ल्ड ओवर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। और वो टर्म जो है वो आज से नहीं है, वो बरसों से है। इनफैक्ट सोशल इंटेलिजेंस जो है वो ऑलमोस्ट 120 सालों से आपको जो है वो रिसर्च में मिलेगी, उसके लिटरेचर में। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस आया, और डेनियल गोलमैन नाम के एक ऑथर ने सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों के कॉम्बिनेशन को जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों में पब्लिसाइज किया। और सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या है, तो सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज साइंस ऑफ लिविंग। दरअसल अगर आप देखें तो माइंड कैसे काम करता है और ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड सॉफ्टवेयर, ब्रेन हार्डवेयर,
तो ये दोनों कैसे काम करते हैं इसकी समझ अगर आपको बेहतर तरीके से हो, तो आप न्यूरोसाइकोलॉजी के एक डोमेन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए अपनी जिंदगी और अपने काम में बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क ला सकते हैं, और ओवरऑल आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों बेहतर हो सकता है। और वो न्यूरोसाइकोलॉजी के डोमेन में रूटेड जो स्किल है सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें हम लोगों का काम है। और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, इट इज अ सेलिब्रेट अवार्ड विनिंग कोर्स, जो कि सेलिब्रेटेड अवार्ड विनिंग कोर्स, जो कि न्यूरोसाइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो है इट डेवलप्स द स्किल इन पीपल। उसके अलावा इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस जो है वो द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नाम की एक संस्था जो है, जो कि वर्ल्ड ओवर हमेशा से स्किल्स प्रेडिक्ट करती है, उनका फ्यूचर स्किल्स वर्क स्किल्स में उनका जो है वो नंबर 2 पे है। और आप एक्सेंचर देखो, आप केपीएमजी देखो, आप मैकेंजी देखो, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखो, आप एक्सेंचर देखो, आप वर्ल्ड बैंक देखो, आप आईएमएफ देखो, इन सब की लिस्ट में आपको जो है वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस मिलेगी। सो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस इज इन शॉर्ट साइंस ऑफ लिविंग। और थोड़ा और समझाने जाऊं तो emotional and social intelligence is the skill of understanding self and connecting with others, and that's how it works. ओके। आपकी एक, जब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड यू वर गिविंग द कॉन्फ्रेंस, यू वर सेइंग समथिंग अबाउट बिगेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ, एंड यू आल्सो सेड अबाउट कि हाउ टू चेरिश इट, हाउ टू लर्न फ्रॉम इट। वो तो सर समझ में आ गया, एंड आई आल्सो लर्न फ्रॉम इट, बट आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या था? मेरी लाइफ में बिगेस्ट ब्लेसिंग मुझे लगता है कोई एक नहीं था, अगेन मल्टीपल थे। पहला तो मुझे लगता है माय बिगेस्ट ब्लेसिंग वन वाज टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू भगवत गीता। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे भगवत गीता हो। मुझे लगता है कि आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू भगवत गीता एंड नॉट एज अ लिटरेचर ऑफ रिलीजन बट एज अ लिटरेचर ऑफ साइकोलॉजी, and that I think changed everything about my life, because the character of Krishna, जिन्हें भगवान कृष्ण कहा जाता है, पर मुझे लगता है more than God, he's actually he's an ideal human being, and I think that character has had a huge impact on me. So one of my biggest blessings of life was when I got introduced to Bhagavad Gita, and not as a religious literature but as a psychological literature. Second, मुझे लगता है मेरी blessing जो एक बहुत बड़ी रही, वो ये रही कि मैं अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही I got exposed to the power of books, the power of listening to poetry and literature, चाहे वो गजल्स हों, चाहे वो बुक्स पढ़ना हो, शरद साहित्य हो, या फॉर दैट मैटर लिखना हो। इनफैक्ट मेरे जो ताऊजी के लड़के, जो मेरे कजन, एल्डर कजन हैं, वो हम लोग सब साथ में रहते थे, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू ऑल दीज थ्री थिंग्स, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ माय लाइफ। एंड थर्ड मुझे लगता है वो था मेरी अर्ली अपब्रिंगिंग, बिकॉज मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय जिसको कहते हैं। तो सेंट्रल स्कूल में उस टाइम पे क्या होता था फैज, कि उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलता था जिनके जो है वो पेरेंट्स या उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे हों। तो उसमें फायदा क्या होता था कि मेरा जो क्लास था, उस क्लास में मुझे किसी क्लास 1 ऑफिसर, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उससे ही बच्चा आता था, और किसी प्यून अगर कोई है तो उनका बच्चा जो है वो भी मेरी क्लास में होता था। तो मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि मुझे डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसके साथ शुरुआत से ही एक बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना, एक बहुत ही राब्ता जो है मेरा बहुत स्ट्रांग बना। और मुझे लगता है उसकी वजह से मेरे एक्सपीरियंसेस की रेंज जो है वो कहीं ज्यादा रही, एंड दैट आई कंसिडर एज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ माय लाइफ। एंड पुटिंग ऑल दिस टुगेदर, जो तीनों इंपॉर्टेंट एक्सपोजर्स थे मेरी लाइफ के, मुझे लगता है उन्होंने मेरे काम को भी बहुत ज्यादा शेप किया। ऑलराइट सर। मेरा ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये वाला मैं 2 क्वेश्चंस को क्लब करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि वर्ल्ड इन 2030 कैसा होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे 2016 आया, डिमोनेटाइजेशन, एक्सेलरेटेड फिनटेक, एंड राइट नाउ कोविड की सिचुएशन के चक्कर में अभी एडटेक का राइज है। हाउ डू यू सी सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कमिंग अप इन 2030? पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वर्ल्ड जो है वो 2030 में वो कैसा होगा, सो मुझे लगता है कि 2030 में वर्ल्ड जो है स्पेसिफिकली, क्योंकि क्वेश्चन तुमने क्लब किया है, तो पहला मुझे लगता है कि वर्ल्ड इन 2030 जो है वो सही मायनों में, जिसको वासुदेव कुटुंबकम कहते थे ना, दैट वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, सच में वैसा होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हम कहीं ज्यादा इंटीग्रेटेड होंगे।
और अब आप देखिए ना, एक तरह की बीमारी जो है वो एक जगह की बीमारी है दूसरी जगह जा रही है। पहले तो सिर्फ कमेंट्स ही आया करते थे, लेकिन अब तो बीमारियां भी आ रही हैं। So will be a truly integrated world, a truly connected world will be actually. But because of that only, we'll also have a lot of collaboration जो कि global level पे होगा, साथ ही साथ competition भी global level पे होगा। तो मुझे लगता है कि we'll live in an integrated, connected world with collaboration as well as increase in competitiveness at the same time competition, दोनों ही। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड इन 2030 का ये बेसिक नेचर होगा कि वो सचमुच में जो है वो वासुदेव कुटुंबकम वाला कॉन्सेप्ट से चलेगा। लेकिन जहां तक इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस के टर्म्स पे दिखता है, मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले वक्त में 2030 तक हम एक फ्रेगमेंटेड सेल्फ और फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स वाले वर्ल्ड में रहेंगे। और जब एक इंसान फ्रेगमेंटेड सेल्फ और फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स के साथ रहता है, तब मुझे लगता है कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अबिस्मल रहती है, बहुत पथेटिक रहती है। पर्सनली मुझे लगता है कि 2030 तक ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। अगर आप इसीलिए मुझसे पूछोगे कि आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से प्रोफेशन होंगे, तो मेरा मानना है एक तो डेंटल हेल्थ और दूसरा मेंटल हेल्थ। क्योंकि लोग जो है वो कुछ तो भी खाएंगे और कुछ तो भी सोचेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि डेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ तो हमेशा अच्छी चलेगी, मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और दोनों ही ऐसी चीजें जिनके बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज की वापसी आएगी करियर में। इंजीनियरिंग जैसे आज है, कॉमर्स उसके पहले था। तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज का युग है अगला। और ह्यूमैनिटीज के उस युग में जहां हम इंटीग्रेटेड और कनेक्टेड वर्ल्ड में होंगे, और जहां कोलैबोरेशन और कंपटीशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे होगा, और जहां पर फ्रेगमेंटेड सेल्फ और फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स होंगी, मुझे लगता है ऐसी एक दुनिया को हम देख रहे हैं 2030 में। ओके, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं ये लिटरली सबसे पूछता हूँ, ये मेरा काइंड ऑफ फ्लैगशिप क्वेश्चन है। कुछ टाइम पहले लोग कहते थे कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट ऐसा होना चाहिए, कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो आपका एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका ये पर्सनल इंटरव्यू क्यों ना हो, मतलब बेसिकली हर जगह कंटेंट का इम्पोर्टेंस होता था। बट मेरा ये मानना था कि कंटेंट इज़ द किंगडम, बिकॉज जब तक आप कंटेंट को एक साम्राज्य की तरह मानोगे तो काइंड ऑफ उसकी चीज़ें अपने आप चीज़ें काइंड ऑफ सॉर्टेड होती हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट कंटेंट इज़ द किंगडम, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, कंटेंट इज किंगडम जो तुम कह रहे हो। मैं इसको ओवरऑल टर्म्स में देखता हूँ। ओवरऑल टर्म्स में, चाहे अब वो कंटेंट जो कि आप इंटरव्यू में बोल रहे हो उससे लेके वो कंटेंट जो कि आप किसी प्रपोजल में डाल रहे हो उससे लेकर वो कंटेंट जो कि फ्लो कर रहा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर, मुझे लगता है आने वाला दौर जो है उसमें कंटेंट इज किंगडम नहीं रहेगा। मुझे लगता है इट विल बी कस्टमाइज्ड चेंज इंड्यूसिंग कंटेंट दैट विल बी द किंगडम। क्योंकि कंटेंट तो इतना फ्लो करेगा और इतना फ्लो कर रहा है कि क्रिएटिव कंटेंट जो है वो अपने आप में क्लीशेड हो जाएगा। बिकॉज आई रियली बिलीव दैट एट द एंड ऑफ द डे द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द चैनल्स, ऑल द चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज जस्ट far too much to be assimilated and far too much to be utilized. और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाला दौर जो है वहाँ पे कंटेंट इज नॉट किंगडम। आई थिंक कस्टमाइज्ड एंड चेंज इंड्यूसिंग कंटेंट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करो या किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट करो या उसे कन्वे करो, फाइनली उसका कस्टमाइज होना बहुत जरूरी है, उसका बहुत फोकस्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ उसका कोई चेंज इंड्यूसिंग होना चाहिए। अगर वो सिर्फ जो है इट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल इच, then it is of no use. It has to be change inducing. It has to make something work better. It should make itself count. और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो इस तरह के कंटेंट को मैं शायद किंगडम कहना चाहूँगा। ओके सर, अभी जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों के मेंटल हेल्थ और काफ़ी ज़्यादा लोगों के मतलब लाइफ में काइंड ऑफ डिस्टेबलाइजेशन हो गया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे। व्हाट इफ़, आई होप ऐसा कभी ना हो फिर से, बट व्हाट इफ़ अगर फिर से लॉकडाउन होता है, फिर से लॉकडाउन होता है, तब उस केस में इंसान को क्या करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉकडाउन फिर से हो? आई होप ये ना हो, लेकिन फिर भी अगर इन केस कभी आगे आने वाले टाइम पे होता है, बिकॉज हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन होगा, लेकिन अभी फिर से हो जाए, लाइक वी नेवर नो, तो तब लाइक फ्रॉम अ सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव तब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है फाइनली जो लॉकडाउन ने सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को मेंटल हेल्थ के टर्म्स में दी, उसकी बेसिक वजह ये नहीं थी कि कोई और प्रॉब्लम थी। बेसिक वजह जो थी वो ये थी दैट they just you know they just let lockdown
disrupt their everyday schedule. I repeat this, it's a very important point. दरअसल क्या होता है कि जब देखिए आप फैज लोग कहते हैं कि किसी को जो पत्रिका दिखा दो या जिसको लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, तो पत्रिका दिखा दो और वो जो है उसका फ्यूचर बताता है. आप मुझे किसी का डेली शेड्यूल बता दो पिछले 1.5 महीने का और मैं एक अच्छी डिग्री ऑफ सक्सेस के साथ उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. क्यों? बिकॉज the seeds of greatness are never in your skill set. It is always in your schedule. You know, what do you do every day? You know, how do you structure a day? How do you execute a day? How do you retrospect? How do you make corrective actions? What is your basic fabric of spending a day? उसमें सब कुछ आता है. तो इसीलिए मेरा मानना है कि अधिकतर लोग जो डिप्रेस्ड रहते हैं वो डिप्रेस क्यों रहते हैं? यार तुम रात को अगर 2:30 बजे सोओगे, 1:30 बजे जो है वो चाय पी रहे होगे और एक बिंज वॉचिंग करके अभी अभी जो है तुमने क्या किया होगा, जो है वो खाना खाया होगा, और खाना भी कैसा होगा वो तुम ही जानते हो. और उसके बाद फिर सुबह उठ जाओगे और 7:30 बजे, और उसके बाद जो है वो बाहर जाके बीच में जो है वो एक आध सुट्टा मार लोगे और फिर वापस आके बैठोगे और फिर जो है वो एक ही टाइप के गाने सुनते रहोगे. तो मुझे बताओ यार कैसे होगी मेंटल हेल्थ ठीक? मतलब फाइनली आपका जो बायो फीडबैक है वही इतना गड़बड़ होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है. So I really believe most of the people who are depressed, most of them, of course, and I'm not talking about clinical depression. Clinical depression is a different thing. I'm not getting into psychiatric aspects of mental health. I'm going towards only psychological aspects of mental health. तो mental health का अगर मैं देखूं नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में, तो अधिकतर लोगों का बेसिक रीजन ये रहता है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ rhythm in their day. They do not have a momentum in their day. They do not have a structure to the day. एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ शेड्यूल उनका जो मेंटल फ्लो रहता है वो कभी स्टैब्लिश ही नहीं होता ड्यूरिंग द डे, और उस चैलेंज की वजह से वो लोग अधिकतर जो है परेशानी में आते हैं. मेरा मानना है कि अगर लॉकडाउन फिर से हो, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड डे इन विच यू आर बीइंग लॉयल टू अ शेड्यूल दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ. अगर वो कर सकते हो ना, मेरा मानना है एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन द प्लेस. यस सर, शेड्यूल तो सबको होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे हम कहीं ना कहीं काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट तो करते ही हैं. बहुत ज़्यादा होता है वो. आपने मुझे एक पॉइंट सबसे बड़ा बताया था व्हेन आई वाज सर्चिंग गिविंग माय पाइवेट फॉर सिम्बायोसिस. उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई वाज नॉट दैट हैप्पी विद माय ओन इंटरव्यू, बट व्हेन आई कॉल्ड यू बैक व्हेन आई वाज इन नोएडा, यू सेड मी वन थिंग कि ओके डाउनफॉल है, कोई टेंशन नहीं है, but ensure that you have learned something out from it. How from that particular point of time when I was giving my own pivot for symbiosis, how to handle pressure, how to handle odd situations, being as an introvert, वो मैंने जाना था. But मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बिगेस्ट डाउनफॉल क्या था और आपने उससे क्या सीखा, तो वो क्या होगा? मेरा डाउनफॉल फेज इन रियल टर्म्स जो था, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स अच्छे बुरे फेजेस सबको आते हैं. तो मुझे लगता है मेरा सबसे सबसे मुश्किल डाउनफॉल जो रहा होगा, which was somewhere around I guess 2008-9 जब रिसेशन था. एंड इट वाज वन ऑफ दोज फेजेस जब मैं पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज सब तरफ से आई गॉट इनटू अ zone जहाँ पर everything had come simultaneously over me. और वो जो एक फेज था, वो फेज में जो है वो उसको मैं मानता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल था मेरी नज़र में. ऑफ कोर्स सबके स्ट्रगल्स जो है वो अलग अलग अपनी अपनी नज़र में होते हैं. मेरी नज़र में मुझे लगता है कि वो था. नॉर्मली क्या होता है, किसी एक एस्पेक्ट को आप झेल लेते हो अगर दूसरा एस्पेक्ट आपके साथ हो. मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ चारों एक साथ उस वक्त पे दे वर ऑल ऑन डाउन वाले लेवल पे. लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा फायदा हुआ उस दौरान फायदा ये हुआ कि उस पूरे डाउनफॉल से निकलने की जो मेरी प्रोसेस थी, जो कवायद थी, उस प्रोसेस में मैं न तो कोई रिलीजियस हेल्प ली मैंने, न कोई स्पिरिचुअल हेल्प ली, न कोई केमिकल इंटरवेंशन लिया, न ही किसी तरह का कुछ मेडिटेशन या ध्यान या ऐसा कुछ किया, न मैंने जो है वो मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ा. मुझे लगता है मैंने उस वक्त पे वापस आने की जो पूरी प्रोसेस थी वो बहुत साइंटिफिक रखी. बिकॉज एट दैट टाइम I think I went through a lot of scientific literature on how to deal with it. Or I came up with, no mission statements or motivational lines. I came up with
a very solid process of scientific nature on how to come out of a difficult phase. और उसने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज वही आगे जाके मेरा काम बना, यू नो। आज अगर देखोगे तो थ्रू माय ट्रेनिंग और थ्रू माय काउंसलिंग और थ्रू माय राइटिंग और व्हाटएवर इट इज, ऑल द मीडिया जो कि मैं यूज करता हूँ या जो भी तरीके मैं यूज करता हूँ, उसके थ्रू मैं क्या कर रहा होता हूँ? मैं दरअसल दो ही चीजें कर रहा होता हूँ। आई एम हेल्पिंग पीपल सॉर्ट आउट एंड एक्सेल इन देयर इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स। तो ये जो यही चीज मैं इसलिए इतना इफेक्टिवली कर पाता हूँ जितने भी इफेक्टिवली मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर वो आजमा चुका हूँ। और वो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस ने मुझे बहुत हेल्प किया। अब उस वक्त ना तो मैंने जो है वो शराब का, ना सिगरेट का, ना सुपारी का सहारा लिया, ना ही जो है वो किसी तरह के बाबा का सहारा लिया, ना किसी तरह के रिलीजन का सहारा लिया, किसी का नहीं लिया। मैंने साइंस का सहारा लिया। और मुझे लगता है वो माइंड और ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसने मुझे वहां से निकलने में मदद की। ऐसा नहीं कि उसके बाद अचानक सब कुछ अच्छा हो गया, रोजी हो गया। मेरे ख्याल में हम सबके स्ट्रगल्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पर वो जो एक था, वो जो पूरा फेज था, उस फेज में इस प्रोसेस ड्रिवन और साइंटिफिक बेस वाले जो पूरे मुझे लगता है प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सप्लोर किया, वो मुझे लगता है कि उसने मुझे निकलने में बहुत मदद की उससे। और साथ ही साथ बाद में जो है वो मेरे काम में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट बन गया है। काफ़ी ज़्यादा नया पर्सपेक्टिव जाना व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग योर बिगेस्ट डाउनफॉल एंड कमिंग आउट फ्रॉम इट। मैंने आपका सोशल मीडिया, आई लिटरली चेक सोशल मीडिया आपका व्हेन कम्स टू योर थॉट्स एंड सेइंग्स ऑफ सोशल एजेंट्स in different perspective. When you say something about different mental health perspective, I observed that you were secretly building a brand. So I want to know very clearly कि what's your secret success to build a brand? वाओ, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरा मानना है कि एक वक्त हुआ करता था जहाँ पे ब्रांड जो है फैज, वो जो द प्रोमिसेस दैट यू मेक दैट वुड क्रिएट ब्रांड। बट आई थिंक नाउ every promise that translates into experience makes a brand. So मुझे लगता है ब्रांड बनाने का एक ही तरीका होता है, that you promise and then you live up to it. You promise and then you live up to it. For instance, example लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कोई सोशल मीडिया डिजाइन में डाली है, और अगर वो मेरे कंडक्ट से नहीं झलक रही है, तो लोग जो हैं वो जल्दी से पहचानेंगे और वो कहेंगे यार ये जो आदमी है ना, ये आदमी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो आई नेवर बी अ ब्रांड, आई ऑलवेज बी अ wannabe ब्रांड। लोगों को लगेगा कि ये तो हमेशा wannabe है। और वो wannabe जो है, वो wannabes नॉर्मली यही करते हैं, वो प्रोमिसेस करते हैं बट डिलीवर नहीं करते। तो मेरा मानना है कि आप या तो प्रॉमिस करो और फिर उसके साथ डिलीवर करो, या वही प्रोमिसेस करो जिनको डिलीवर कर सकते हो। तो मुझे लगता है दो वर्ड्स होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस होता है और ब्रांड इक्विटी होती है। तो मुझे लगता है कि इट इज अबाउट ब्रांड इक्विटी। ऑफ कोर्स अवेयरनेस मैटर्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई रियली बिलीव दैट ब्रांड इक्विटी मैटर्स। और वो ब्रांड बनाने का बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप जो है वो अब यू ट्रांसलेट दोज प्रॉमिसेस इनटू एक्सपीरियंसेस। और मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ना, आज आप किसको आप बेवकूफ बना सकते हो? ऐसे किसी को नहीं बना सकते। आज आप कितना ही बड़ा ऐड क्यों ना कर लो, पर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो अमेजन पे जो है वो रिव्यू में साफ लिख देगा सामने वाला कि ये तो बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। आप किसको रोकोगे? सो फाइनली इट इज अबाउट एक्सपीरियंस, एंड इफ यू कैन वर्क ऑन इट, देन आई रियली बिलीव दैट यू विल बिल्ड अ ब्रांड। ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट। एक दिन अचानक आप ब्रांड नहीं बन सकते। मैं हमेशा से कहता आया हूँ दैट पॉपुलैरिटी इज गेन्ड, फेम इज अचीव्ड, बट रेपुटेशन इज एस्टैब्लिश्ड। मुझे लगता है कि रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है, और उसको मैं ब्रांड कहूँगा। Okay. Your three learning sources, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके three learning sources क्या हैं? इनफैक्ट ये मेरी कहावत है जो मैं हमेशा लोगों को कहता रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी ऑफ कोर्स वो लाइन ये है कि द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करते हैं कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। तो मेरा मानना है कि ये चार जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं लर्निंग के। और पर्सनली मेरी ज़िंदगी में इन चारों सोर्सेज को जो है मैं बहुत अच्छे से रेगुलेट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से मेरी लर्निंग
बनिस्बत बहुत सारे लोगों के जिनको मैं जानता हूँ, मेरी लर्निंग जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूस रही है. सो दैट वुड बी माय रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन. Sir, what is your understanding when it comes to positivism? पॉजिटिविज्म जो है तुम बोल रहे हो, वो पॉजिटिविज्म अगर मैं लिटरल वर्ड के साथ जाऊँ तो पॉजिटिविज्म शायद बहुत सारे लोग नहीं समझते हो जो सुन रहे होंगे. पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है ये विचारधारा, ये स्कूल ऑफ थॉट कि जिंदगी में आप जिस चीज को अनुभव कर सकते हो उसी में से कोई लर्निंग निकाल सकते हो, उसको पॉजिटिविज्म कहते हैं. अप्रियोराई और अपोस्टीरियोराई नाम के दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं. अपोस्टीरियोराई का मतलब ये होता है कि आपने अनुभव करके जाना, ठीक है, और अप्रियोराई मतलब का मतलब हुआ कि आपने तब भी मान लिया जब आपने खुद अनुभव ना किया, जैसे मैथ्स, तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिविज्म का जो बेसिक रिसर्च में मतलब है वो ये है कि इंसान अनुभव करके जानता है, उसे पॉजिटिविज्म कहते हैं. वेयर इफ यू लर्न एक्सपीरियंशियली एंड देन ट्रांसलेट इनटू फैक्ट्स. तो मेरा जो उस लिहाज से देखा जाए तो पॉजिटिविज्म के ऊपर मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं ये मानता हूँ फैज कि इंसान को जो है वो ऑफ कोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए. और एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी अनुभव से सिर्फ ऐसे ही गुजर जाना. मेरा मानना है कि अनलेस यू इंटरप्रेट, इन्फर एंड इंक दैट एक्सपीरियंस, तीनों बातें, यू इंटरप्रेट, देन यू इन्फर एंड देन यू इंक. इंक से मेरा मतलब है उसे डॉक्यूमेंट करना, उसमें से कुछ निकाल कर सामने डिलिनेट करना. अगर वो आप कर रहे हो ना, तो मेरा मानना है दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियली डू इट. सो आई एम ऑल इन फॉर पॉजिटिविज्म, नो डाउट अबाउट दैट. ये एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है काइंड ऑफ, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब पूछते भी हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग अपना जब भी कोई काम करते हैं प्रोफेशन में, तो हम लोग काइंड ऑफ बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. लेकिन आप काफ़ी लंबे टाइम से इस फील्ड में हैं, सो आप अपनी आप को मोटिवेट कैसे करते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर ओन प्रोफेशन? आई थिंक मेरे केस में थोड़ा सा फैज में लकी रहा. तुमने फैज बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो उससे मालूम है मुझे कौन याद आ गया, मुझे फैज याद आ गया. फैज अहमद फैज यस. और अहमद फराज और अहमद फैज याद आ गया मुझे. तुमको मालूम है एक बड़ी खूबसूरत नज्म है, वो नज्म ये है, बहुत छोटी सी, बड़ी बहुत खूबसूरत है कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. तो अधिकतर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग वो नहीं होते हैं जो कि इश्क को काम या काम से इश्क करते हैं. वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली दोनों को अधूरा छोड़ देते हैं. उनका इश्क और काम अलग होता है. मैं थोड़ा सा किस्मत वाला ये रहा कि मैंने उसके लिए लड़ा भी हूँ मैं, ऑफ कोर्स, पर मेरी जिंदगी में जो काम मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरे नेचर का नेचुरल एक्सटेंशन है. मतलब मैं एक्चुअली वही हूँ और मैं उसमें यकीन भी करता हूँ. इसलिए टू मी इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जो है करना हो, या फॉर दैट मैटर किसी ट्रेनिंग के थ्रू कराना हो, या काउंसिल करने के थ्रू, या राइटिंग के थ्रू हो, दैट इज ऑल नेचुरल एक्सटेंशन टू हु आई एम. मुझे नहीं लगता उसके लिए मुझे कोई दूसरी स्किन ओढ़नी पड़ती है, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता उसके लिए. बिकॉज मेरा मेरा मानना है कि वो काम मेरे लिए एक तरह का जिसको मैं कहता हूँ ना, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ माई ट्रू सेल्फ. तो इसलिए शायद मुझे लगता है इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मैचिंग नेचर विथ योर प्रोफाइल. और उस वजह से क्या हुआ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इंसान को अपनी फितरत के मुताबिक अगर काम चुन ले वो, तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है. चाहत के मुताबिक नहीं चुनना चाहिए उसको काम, फितरत के मुताबिक चुनना चाहिए. दोनों में फर्क है फैस. चाहत के मुताबिक इज डिफरेंट, फितरत के मुताबिक दूसरा. ये बिल्कुल शादी करने जैसा है. आप जिसे चाहते हो उससे शादी करते हो वो अलग चीज है, और जिससे आप कंपैटिबल हो उससे शादी करते हो अलग चीज है. जिससे आप चाहते हो उससे शादी करते हो, अगर उससे आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आगे पीछे वो नहीं टिकेगी. तो पर्सनली मेरा मानना है कि फिर काम के साथ भी ऐसा ही है. आपकी फितरत से उसका एक साबिका बनना चाहिए. उस अगर जब तक वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना, तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा. तो मेरे लिए मुझे लगता है मैं ज्यादा इतने साल से इसलिए काम कर रहा हूँ, और होपफुली आगे भी करता रहूंगा अच्छे से, जब तक करूंगा. वो मुझे लगता है उसका बेसिक वजह ही ये है क्योंकि मेरे लिए काम जो है वो दरअसल पहले तो बहुत बड़ी खुराक है जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होती है.
तो मेरे लिए वो एक नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ. सो दैट वुड बी माय रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. अब आते थोड़े से काइंड ऑफ फिक्शनल इमेजिनरी तरीके के क्वेश्चंस में. अब अगर एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक बिलबोर्ड दे दिया जाए जो आज जिसमें आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो आप उस पर क्या करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? मैं उस बिलबोर्ड पे ना एक बड़ा सा ब्रेन बनाऊंगा. मैं उसमें बहुत बड़ा सा ब्रेन बनाऊंगा एक, और वहां पे लिखूंगा इट ऑल स्टार्ट्स हियर. ठीक है. तो वो मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इमेजिन करो, मतलब फैज तुम ही खुद सोच के देखो, हम अगर एक एक पेन ड्राइव भी खरीदते हैं तो पीछे पलट के उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं. हम एक जो है वो वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं तो उसका ऑपरेशनल मैनुअल चेक करते हैं. लेकिन ये जो यहाँ पे रखा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट मशीन जिससे हमारी जिंदगी चलती है और जिसमें हम अपनी जिंदगी जीते हैं, उसके बारे में ऑलमोस्ट कोई हमें कुछ नहीं बताता और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की. एंड दैट इज एन अटर शेम, बिकॉज हमें न बायोलॉजी में इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की गई, न ही हम लोगों को कभी बाद में समझाने की कोशिश की गई. तो मुझे लगता है कि अगर इसकी समझ हो, और मैं यहाँ पर जब ये कर रहा हूँ तो यहाँ दो चीजें हैं, ब्रेन और माइंड दोनों है, यानी मस्तिष्क और मन दोनों अलग चीजें हैं. तो या जिसे मैं कहूँ कि हमारा दिमाग और मगज, तो ये ब्रेन और माइंड है. एंड यहाँ साइकोलॉजी में बड़ी खूबसूरत कहावत है कि माइंड इज व्हाट ब्रेन डज. सो ब्रेन क्या होता है वो पता तो चले. जो 350 सीसी का हम लेके आते हैं करीब, और आके जो बाहर ग्रो करके करीब 1250 सीसी तक जाता है, वो दरअसल ब्रेन जो है कई बार किस केस में ऑफकोर्स 350 1300 1400 तक जाता है. ये जो है यहाँ पर, ये कैसे काम करता है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाना है. और अगर ये आपने समझ ली तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में इतना सारा सॉर्टिंग आ जाता है. सॉर्टिंग से मेरा मतलब है सुलझ जाती है जिंदगी. बेहतर आसान होना मुझे नहीं पता होती है या नहीं. मेरा मानना है कि चीजें देखो, लाइफ लाइफ डिफिकल्ट तो होती है पर लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए. फैज मेरा मानना है लाइफ इजी नहीं हो सकती पर सिंपल हो सकती है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि वो डिफिकल्ट तो फिर भी रहेगी लेकिन कॉम्प्लेक्स ना हो कम से कम. और उसकी समझ मुझे लगता है यहाँ से शुरू होती है. तो मैं बिलबोर्ड पे एक बड़ा सा ब्रेन बनाऊंगा और नीचे लिखूंगा यू नो इट्स It ऑल all केयर. starts there. uh, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टर्न बैक द टाइम एंड यू मीट इट योर 18-year-old self, so what message you would like to convey to your 18-year-old self? तुमने मुझे एक शेर याद दिला दिया. झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो. तो मुझे लगता है कि तुमने मेरा ख्वाब जवानी जो है वो दोहरा दिया है. पलट के अगर देखूं मैं 18 साल के संदीप अत्री को अगर कुछ कहना हो मुझे तो क्या कहना होगा, यही सवाल है. मुझे ऐसा लगता है फैज कि मेरी टीनेज बहुत अच्छी नहीं रही. उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ ऑफकोर्स. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शुरुआत से ही आई हैव बीन एन एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिविटी वाला बच्चा. और मुझे लगता है कि मेरी सेंसिटिविटी, मैं सचमुच मेरे सबके सामने कह रहा हूँ आज, मेरी सेंसिटिविटी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. बहुत कम लोगों में मैंने वो सेंसिटिविटी देखी. और उस सेंसिटिविटी के साथ मुझे लगता है मैं शायद मेरे डीएनए में वो कहीं से, और मैं उसके साथ जन्मा. और वक्त के साथ साथ उस सेंसिटिविटी के साथ में बढ़ रहा था. और हुआ ये कि टीनेज जैसी आई और एडोलेसेंस जैसी आया, तो मुझे लगता है वो सेंसिटिविटी को मेरे आसपास के लोग समझ नहीं पा रहे थे. कोई भी नहीं समझ पा रहा था. और आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज नॉर्मली बच्चों की सेंसिटिविटी उस तरह की नहीं रहती. तो हुआ ये कि वो सेंसिटिविटी, चूंकि वो भी नहीं समझ पा रहे थे मेरे आसपास के लोग, और मैं भी नहीं समझ पा रहा था अपनी सेंसिटिविटी को, क्योंकि वैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं इंसान के उस टाइम पे. तो मुझे लगता है कि उस सब में मैं, तो बहुत बड़ी बात है कि मैं जो हूँ वो उस टाइम पर आई डिड नॉट रियली गेट इनटू अ मेस. और वो जो टीनेज और एडोलेसेंस था, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त पे आई वॉज नॉट रियली अ वेरी सॉर्टेड पर्सन. पर जैसा कि मैं कहूँ, आज के पुराने एक्सीडेंट्स आपके बाद में इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, मतलब टुडेज ट्रेजेडीज टुमारोज कॉमेडी वैसा हो जाता है. और मैं तो ट्रेनर हूँ. तो उस वक्त की वो सारी उलझने जो जिंदगी की थी वो मेरी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट मेडल्स बनी बाद में जाके. बिकॉज आई कैन रिलेट टू ऑल दोज पीपल हु गेट मिस्ड अप. आई एक्चुअली कैन सी देम. और मुझे, जैसा कि मैंने कहा, आई वाज फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल आई हैड अराउंड मी इन माय लाइफ, जिसकी वजह से आई डिड नॉट गेट इनटू अ मेस, बट आई डिड नॉट रियली एंजॉय माय टीनेज एज मच एज आई मस्ट. मैं 18 साल के उस बच्चे से क्या कहता, मैं उसको बताता हूँ. मैं 18 साल के उस लड़के से कहता कि पहले तो
अच्छा वक्त जाया मत करो। मेरा मानना है मैंने उस वक्त बहुत सारा वक्त जाया किया, जैसे नॉर्मली हर टीनेजर करता है। मेरे पास बहुत सारा वक्त था, बहुत सारा वक्त, और मुझे लगता है उस वक्त को आई कुड हैव पुट टू फार बेटर यूज अगर मैं अपने अंदर अपने आप से स्ट्रगल उतना नहीं कर रहा होता था। और जैसे पर ऑफ कोर्स उससे भी मैंने प्रोसेस निकाली और सीखा, पर मुझे ऐसा लगता कि वो एक लाइन में अगर कहना होता तो मैं जरूर कहता उसको, उस लड़के को, कि अच्छा वक्त जाया मत करो, और अच्छा वक्त ऐसी चीजों में जाया मत करो जो इन एनी केस वक्त के साथ सुलझ जाएंगी। और मुझे लगता है वो अगर मैं कह पाता तो मुझे लगता कि शायद मैं और बेहतर वर्जन हो पाता। काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी की वहाँ पे बात आ ही गई है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंसर्निंग भी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आपके हिसाब से सर, आपको क्या लगता है कि एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर का रोल क्या होता है एज एन लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ? लाइक डिजिटल इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ एक ऐसा पर्सनैलिटी आज की डेट में ऐसा है कि वो किसी को भी इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ दैट पर्सन। हम अपने इन्फ्लुएंसर से काइंड ऑफ कनेक्टेड रहते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इज़ द सोल रीज़न कि हम लोग उनसे क्लोज भी रहते हैं। सो वॉट इज़ द रोल और द इम्पॉर्टेंस of mental health as a digital influencer? A lot, no doubt about that, a lot। उसका रीजन ये है क्योंकि ऑन एनी डे डिजिटल इन्फ्लुएंसर जो है वो एक तरह का आपका रोल मॉडल है, और वो बहुत अलग अलग तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि एक टीचर, एक लीडर और एक पेरेंट को सबसे ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। अगर वो सुलझा हुआ नहीं है ना, तो वो अपने पीछे उलझे हुए लोगों की एक लेगेसी तैयार कर देता है, और उस चक्कर में जो है बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाती। तो मेरा मानना है कि सिर्फ एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही दरअसल जिंदगी में अपने पीछे जो है वो कोई विरासत छोड़ के जाता है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर जो हो वो एक सॉर्टेड पर्सन हो, और सॉर्टेड पर्सन के लिए मेंटल हेल्थ बेहद जरूरी है। बिकॉज एज आई सेड, फाइनली वो अपने कंडक्ट के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। पर कोई भी कंडक्ट या कोई भी कम्युनिकेशन जो है फाइनली इट इज रूटेड इन समवन्स कैरेक्टर। और अगर वो अपने कैरेक्टर कैरेक्टर मतलब यहाँ वो वाला चरित्र नहीं है कि आपने क्या खाते पीते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टर इज हु यू आर, मतलब आप मुझसे डेफिनेशन पूछो तो पर्सनालिटी इज हु यू आर व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड कैरेक्टर इज हु यू आर व्हेन यू आर अलोन, है ना। पर्सनालिटी इज हु यू आर व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड कैरेक्टर इज हु यू आर व्हेन यू आर अलोन। तो ये पर्सनालिटी और कैरेक्टर के बीच में जितना गैप कम होता जाएगा उतना आप सॉर्टेड इंसान बनते जाओगे, सुलझे हुए इंसान। तो आप जो दिख रहे हो और आप जो हो, इसके बीच में अगर गैप कम हो रहा है मतलब सब अच्छा है। ये गैप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि है तो हम सोशल एनिमल ना, हमारी कोई ना कोई कमियां तो ऐसी हैं जो हम नहीं बताएंगे किसी को। तो वो जितना गैप कम कर सको आप अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर के बीच में, और जितने सॉर्टेड रह सको, उतने ज्यादा आप एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर एथिकली लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। ओके, ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन या फिर वर्किंग स्टाइल एवरीथिंग। एक बड़ा कॉमन मिथ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड क्या है, और आप उसको डिबंक किस तरीके से करना चाहते हैं? हाँ मैं जैसे हाँ बोलो बोलो। मैं फोटोग्राफर हूँ या फिर मैं एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हूँ, और मेरे साथ ये होता है कि बेसिकली सबसे बड़ा बिगेस्ट मिथ ये होता है कि हाउ विल आई अर्न व्हेन आई एम इन दी मार्केट। ओके, ये सबसे बड़ा कि ओके, बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन नॉट अर्न एनीथिंग एंड स्टफ लाइक दैट। बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, सबसे बड़ा मिथ क्या है और उसका डिबंक क्या है? देखो, मैं अराउंड अगर सारे साल गिनूं, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले की भी, तो और 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर आप मुझसे पूछोगे थोड़ा सबसे बड़ा वो क्या है मिथ, तो लोगों को लगता है कि हमारे प्रोफेशन में ना आप बोलने की खाते हो, है ना, जबकि इससे बड़ा कोई मिथ ही नहीं। मैं देखता हूँ फैज, जस्ट टू शेयर विथ यू, मेरा मानना है कि मैं बहुत एलर्जी को मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ, क्योंकि मेरा मानना है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोगों को लगता है कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं अधिकतर? इट इज कॉमन सेंस ड्रेस्ड अप। आई रिपीट दिस टर्म, इट इज मोर और लेस कॉमन सेंस ड्रेस्ड अप। यानी आप कॉमन सेंस की बातें करो बिल्कुल ड्रेसअप करके, और आप स्टाइलाइज्ड तरीके से करो उसको,
अधिकतर लोगों को लगता है क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी वो स्टाइलाइजिंग है। तो अगर आप कॉमन सेंस ड्रेस्ड अप बातों को स्टाइलाइज्ड तरीके से कहो तो लोगों को लगता है ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ये नहीं है। ट्रेनिंग है आप जब किसी को कोई चीज समझा या सिखा रहे हो तो आप उसके पीछे के साइंटिफिक, पूरे साइंटिफिक बेस के साथ समझा रहे हो। यानी क्या? यानी ये कि बिना शोध के बोध नहीं हो सकता, बिना रिसर्च के नॉलेज नहीं हो सकता। यस सर। और मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, लोग एक किताब पढ़ के वीडियो बना लेते हैं। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? ये जो तुमने पढ़ा उसमें से कितना कुछ पीयर रिव्यूड था। मैं तो यहां तक देखता हूं कि लोग आजकल ना बाकी लोगों के कंटेंट को जो है अपने नाम से बोलने लगता है। आजकल ओरिजिनलिटी की एक ही डेफिनेशन होने लग गई है बस। वो पता है क्या है? वो है एबिलिटी टू हाइड द सोर्स। अगर आप सोर्स हाइड कर सको तो आप ओरिजिनल लिखते हो। आई मीन दैट इज क्रैप। फाइनली आपका अपना स्टैंडिंग क्या है? आप अपने प्रोफेशन में आप जो बोल रहे हो उसके पीछे का आपको सचमुच में आगा पीछा पता भी है या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आपने ना उसे अनुभव किया हो, न ही आपने उसके पीछे के साइंस को, विज्ञान को जाना हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ज्ञान विज्ञान के बिना आए ना उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब डू नॉट टेक कॉग्निजेंस और डू नॉट एक्नॉलेज knowledge which doesn't come from scientific and research based roots। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मिथ है, हमारे डोमेन का, कि भाई जिसको अच्छा बोलना आता है ना वो चल निकले। ऐसा थोड़ी होता है। आप बोलने की नहीं खाते हो। देखो, अ गुड स्पीकर डजंट स्पीक व्हेन ही हैज टू से समथिंग, अ गुड स्पीकर स्पीक्स व्हेन ही हैज समथिंग टू से। ये मेरी अपनी लाइन नहीं है, ये किसी और की लाइन है, लेकिन क्या खूबसूरत लाइन है। अ गुड स्पीकर स्पीक्स व्हेन ही हैज समथिंग टू से। तो आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए कहने लायक। और अगर वो कस्टमाइज्ड और अगर वो चेंज इंड्यूसिंग नहीं है तो मेरा मानना है वो असर तो कुछ लाना ही नहीं है ना। So do not try to impress people. Help them change. And there is a difference between the two. ओके, यू टॉक्ड अबाउट रिसर्च एंड एवरीथिंग। उससे मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा लिंक करना है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट टिप फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? What is my best tip to make this world a better place? मेरा मानना है आप दो चीजें ले आइए अपने अंदर तो आपकी जिंदगी और बाकियों की जिंदगी और पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। पहला सिंसियरिटी और दूसरा एम्पैथी। दो चीज, सिंसियरिटी, एम्पैथी। आप सिंसियर हो जाओ। सिंसियर हो जाओ मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा शिद्दत से और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन से और बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन से और बहुत ज्यादा अवेयरनेस से करो। जो भी काम कर रहे हो आप जूसे साफ कर रहे हो उसे लेके, आप जो है वो लंगर में खाना परोस रहे हो उसे लेके, और फाइनली जो है आप एक यूट्यूबर बन रहे हो या आप एक फोटोग्राफर बन रहे हो या आप एक ट्रेनर बन रहे हो या आप डांसर बन रहे हो, जो भी आप बन रहे हो, सिंसियर हो जाओ। पहले तो सिंसियरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा एम्पैथी। एम्पैथी मतलब भाई सामने वाले के नजरिए से जिंदगी को और दुनिया को देखने की कोशिश भी करो, हालात को देखने की कोशिश करो, किसी वाक्य को देखने की कोशिश करो कि भाई इस वक्त जो है वो सामने वाले पे क्या गुजर रही हो। ये एम्पैथी है। सिंपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हिंदी और इंग्लिश जो है बड़े खूबसूरत लैंग्वेजेस हैं। तो हिंदी में दो वर्ड्स हैं, एक है सहानुभूति और एक है समानुभूति। तो सहानुभूति जो है वो सिंपैथी है, समानुभूति मतलब एम्पैथी है। सिंपैथी इज फीलिंग बैड फॉर समबडी एंड एम्पैथी इज फीलिंग व्हाट अदर पर्सन इज फीलिंग। एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन्स प्लेस, जिसको हम कहते हैं ना स्टेप इनटू माय शूज एंड वॉक फॉर अ माइल, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन मी, व्हाट गोज इनसाइड मी। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपने सिंसियरिटी लिया है और अगर आप एम्पैथी लिया है तो यकीन मानिए, आई रियली बिलीव दैट वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। दैट्स ट्रू। सर ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूँ। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? हाउ वुड आई लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? इसके इसके पीछे थोड़ी स्टोरी बताता हूँ तुमको। वैसे मैंने जो अपने एमबीए के दौरान जो अपना सीवी बनाया था ना, उसके अंदर मैंने ये लाइन लिखी थी अपनी, जो लिखते हैं ना लोग करियर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो लिखते हैं वहाँ मेरा सीवी में ऑब्जेक्टिव लिखा था मैंने। और वो ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिखा था वो लाइन लिखी थी मैंने, एक लाइन है सिर्फ, और उसके नीचे जो है वो मैंने जिस इंसान ने ये कहा था उस इंसान का वो भी लिखा था, नाम भी। तो मुझे आज भी याद है, एक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे पूछा ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारा है पर तुमने उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये किसका है, तो फिर बताओ कि तुमने ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कैसे है ये। तो मैं हमेशा बोलता था कि देखिए सर ये मेरा ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आई कुडंट हैव सेड इट इन अ बेटर मैनर। जितने अच्छे से इस इंसान ने उस बात को कह दिया, यकीन मानिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। और वो लाइन थी किसकी? वो लाइन थी एनआर नारायण मूर्ति की।
नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर्स में से एक है। मैं पता है क्या लिखता था, वो लाइन जो मेरी ऑब्जेक्टिव थी, वो लाइन थी, और ये नारायण मूर्ति का ऑब्जेक्टिव था, टू बी सोशली नोन फॉर माई प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या खूबसूरत लाइन है, फिर से सुन, टू बी सोशली नोन फॉर माई प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी मैं प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट ऐसा करना चाहता हूँ इस पाए का, इस मयार का, कि मुझे लोग सोशली जानने लगे। समझ रहे हो? मेरा मेरा काम उस वक़ार का हो, उस स्ट्रक्चर का हो कि लोग मुझे सोशली जानने लगे। तो अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैं यही कहूंगा, टू बी सोशली नोन फॉर माई प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दरअसल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। सो नाउ आई थिंक यू नो हाउ आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज। Yeah, that's true. I hope आपको उसी तरीके से लोग रिमेंबर भी करेंगे। होपफुली। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एज अ ह्यूमन बीइंग वाला क्वेश्चन है। आपने ये लाइक यू एज अ ह्यूमन बीइंग लाइक मी, वी ऑलवेज हैव वन इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर वी हैव फेल्ट अलोन। ओके, सो आपके केस में जब आप व्हेन यू वर फीलिंग लेफ्ट आउट या यू वर फीलिंग अलोन, what did you do and how did you came out of it? आई थिंक इसका मैं थोड़ा सा हिंट पहले आपको दे चुका हूँ, जो एक पिछला सवाल था उस दौरान, कि वो जो एक फेज आया था जब मैं पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज सब तरफ से प्रॉब्लम में था, है ना। सो ये जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी, पिछले क्वेश्चन में भी जवाब दिया था एक क्वेश्चन में, कि वो एक फेज मेरा मुश्किल था जिस दौरान जो है मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि उसी दौरान मैंने लोनली फील किया था, ऑनेस्टली। वो एक लोनली फेज था मेरी लाइफ में। मुझे अचानक से लगा था कि अरे मैं तो काफी अकेला हूँ, हालांकि मैं नहीं था। कई बार आपको लगता है आप अकेले हो, पर आप होते नहीं। सो मैं लोनली बहुत महसूस कर रहा था उस वक्त पे, वो एक फेज मुश्किल था। लेकिन उस वक्त मैं फिर बाहर कैसे निकला, मुझे लगता है एक लाइन, देखो मैंने कहा था ना पोएट्री लिटरेचर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है, एक बड़ी खूबसूरत कविता है, उसकी लाइन बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट लाइन है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। वो लाइन थी, अकेले बन, देखो ध्यान से, अकेलेपन का बल पहचान। लाइन इज, अकेलेपन का बल पहचान, शब्द कहाँ जो तुझको टोके, हाथ कहाँ जो तुझको रोके, राह वही है दिशा वही, तू जिधर करे प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। ब्यूटीफुल है कि भाई अकेलेपन का बल पहचान, शब्द कहाँ जो तुझको टोके, हाथ कहाँ जो तुझको रोके, राह वही है दिशा वही, तू जिधर करे प्रस्थान। मुझे लगता है दैट फेज, लोनलीनेस का जो फेज था, उससे मैं इस तरह बाहर निकला, बिकॉज आई रियलाइज दैट being alone can be extremely liberating and extremely powerful, and I utilized it to my benefit. So that's my response to this question. रियली रियली हरिवंश राय की सर की जितनी भी लाइंस थी, चाहे वो अग्निपथ हो, बहुत सारी डिफरेंट लिटरेचर्स थी, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को उन्होंने लोग अपने सिचुएशंस या फिर लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश करी थी। मोस्ट ऑफ दी थी, मेरे लिए तो अग्निपथ थी। और मेरा अब आता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं जनरली सुनना चाहता था फ्रॉम लाइक एज अ मेंटर आपके थ्रू, कि आपके प्रोफेशन में जो आपका स्पेसिफिक रोल है अभी, उसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज आप क्या फेस कर रहे हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम इट। आई थिंक अभी सबसे बड़ा जो स्पेसिफिक रोल है जिसमें मैं जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, वो क्या है, हमारे ग्रुप के बिहाफ पे सोशलिजेंस जो है, जो हमारा वेंचर है, जो कि ऑनलाइन कोर्स, जैसा मैंने कहा, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के बेसिस पे जो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस का स्पेशलाइज कोर्स है हमारा। मुझे लगता है, बिकॉज आई एम द फाउंडर ऑफ दैट, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है मेरे लिए इस रोल में, कि मुझे इस काम को लोगों तक पहुंचाना है, and I want to take it to the world at large. And I've been able to do it. As an EG, I've not been able to do it. But I genuinely believe, even in all my modesty, I genuinely believe, Faiz, that one course is almost life-changing for everybody. And when I say so, believe me, I'm not saying it just for the sake of saying it. मेरा बहुत ट्रू, बहुत डीपली हेल्ड कन्विक्शन है उसमें। पर चैलेंज ये है कि दुनिया इतनी क्लटर्ड है,
चाहे आप ट्विटर देखो, चाहे वो आप लिंक्डइन देखो, आप फेसबुक देखो, आप कहाँ देखो, इंस्टा से लेकर हर जगह देखो, यूट्यूब देखो, it is so cluttered, that space is, that to take it to the world is in itself a big challenge. And that is, I believe, a big challenge for us as an organization. And it's a big challenge for me as a social and emotional intelligence expert. बिकॉज मुझे लगता है कि वो चैलेंज जो है वो ऑफ कोर्स मजा भी आएगा उसमें, बिकॉज उसी बहाने जो है वो आप भी बेहतर होते हो ना, यू आल्सो गेट रिफाइंड। अगर स्ट्रगल आपको शेप करता है तो मुझे लगता है कि वो भी मजा आएगा, पर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। एंड हाउ डू आई प्लान टू ओवरकम इट? आई रियली थिंक दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट कंसिस्टेंसी बरकरार रखूं। मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने कहा कि तुम मुझे बरसों से सोशल मीडिया पर देख रहे हो और तुमने देखा है कि मैं कंसिस्टेंटली हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच रहा हूँ। मुझे लगता है ऑन एनी डे कंसिस्टेंसी कैन बीट ऑलमोस्ट एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। मेरी ऐसी फीलिंग रही है। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू चेक दैट एंड टेस्ट दैट हाइपोथेसिस कि वो सच है कि नहीं। सो आई बिलीव दैट with a better quality and far more consistency, our challenge is to make sure that our work reaches to the world out there. ओके सर, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन जो ये है कि हाउ डू यू कंटिन्यू टू लर्न इन ऑर्डर टू स्टे टॉप ऑन द थिंग्स विद इन योर रोल? आई थिंक इसका जवाब मैं एक बार दे चुका हूँ फैज। वो ये है कि याद है तुम्हें, द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू, एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं और जिस तरह के दोस्त सुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं। मुझे लगता है आई कंटिन्यूसली रेगुलेट देम, ऑल फोर ऑफ देम। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है कि मैं आई डोंट से आई स्टे एट द टॉप ऑफ इट, बट आई स्टे एट ऑलमोस्ट टॉप ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि आप जब ये चार चीजें लगातार ढंग से रेगुलेट करते रहते हैं ना, तो आप इवॉल्व होते रहते हैं, आप अपना बेहतर वर्जन लगातार बनते रहते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सभी को करनी चाहिए अपने प्रोफेशन में, और वो ये है, मैं तुमने पता नहीं शायद देखा या नहीं, लेकिन जब भी मैं किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो मेरे डोमेन का है और जिस पे सोशलिजेंस का वो कोर्स है, जहाँ से भी उसमें लिया गया है कुछ, उसका बर्थडे पे जो है वो सोशलिजेंस रिमेंबर्स विद रेफरेंस नाम का एक वो निकालता हूँ डिजाइन, और उसके ऊपर एक लाइन लिखी रहती है। वो लाइन है कि न्यूटन की लाइन है, न्यूटन की वो लाइन ये है दैट आई लुक टॉल बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मैं इसलिए आपको लंबा दिख रहा हूँ, ऊंचा दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो जायंट्स और जीनियस जो हैं उनके कंधों पे खड़ा हूँ। तो आज अगर मेरा काम है इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस का, और मैं दरअसल मैं आज क्यों अच्छा लग रहा हूँ, मैं इसलिए अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसर्चर्स, सिल्वन टॉम्किंस, पॉल एकमैन, और उसके अलावा न जाने कितने नाम हैं, मतलब सिगमंड फ्राइड से लेके कार्ल गुस्ताव युंग से लेकर, और अगर मैं इधर आऊं तो आप पाओगे कि जोसेफ लेडू से लेकर न जाने कितने सारे लोग हैं जिनके कंधों पे मैं खड़ा हुआ, इसलिए मैं अच्छा दिखता हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान को अपने पुरखों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पितृ पुरुषों को नहीं भूलना चाहिए, जैसे श्राद्ध होता है ना, वैसे ही अपने प्रोफेशन के भी जो पितृ पुरुष हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मेरे एंसेस्टर्स है ना। जिस तरह से मेरे दादाजी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उनका जन्मदिन इंपॉर्टेंट है या उनका श्राद्ध मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से what do I say, there is a Duchenne, or there is a Charles Darwin, or there is a William James, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज थोड़ा सा ऊंचा दिखता हूँ। और मुझे लगता है कि इफ यू कंटिन्यू टू फॉलो देयर वर्क क्लोजली, then it keeps you grounded and still at the top. देखा मजेदार बात, it keeps you grounded and still at the top. और वो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप होगी मेरी। यस। सो इस क्वेश्चन के साथ वी आर एंडिंग अप विद द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल बातें थी। मी एट अ पर्सनल लेवल आई हैव लर्नड अ लॉट। आई हैव लाइक मेरी परसेप्शन कुछ नया ही डेवलप हो गया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, दिस पॉडकास्ट वॉज वन ऑफ माई ड्रीम पॉडकास्ट टू डू, because from the person that have taught me a lot, and because of this person I am right now what I am. मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं इनके साथ इंटरेक्ट करूँ और एक काइंड ऑफ कंटेंट लेवल पे इनके बारे में या फिर इनके परसेप्शंस के बारे में जानूँ. सो फॉर मी इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू कि दैट
I have talked with sir, done a podcast with him. So sir, first of all, thank you so much that you have like come here and So much, Faiz. In fact, I really admire your passion and I really admire the fire inside belly. जिसको हम कहते हैं. You have that fire in the belly, and I'm extremely happy that you wanted me to be a part of this, and may this channel of yours and may this initiative of yours, become one of the best around. Thank you for that. thank you so much, sir. Well, I hope you guys like this entire conversation that I had with Dr. Sandeep Atre in this entire podcast. I hope that if you like this podcast, you will subscribe and like or dislike according to your own desire. But please do give it a thumbs up or a thumbs down and mention down in the comment section below as to what did you learn from this podcast, what part of the podcast was better, what part of the podcast was good, what thoughts he was saying was right, was good, and what your thoughts about this podcast. Just let me know in the comments. So stay tuned. Our next video में मिलेंगे, which will be on Wednesday, where I will be sharing some positive news around the entire world, because stay positive में making positivity go viral is the only intention. तब तक के लिए stay tuned.